और जो अभी तक मेरी जानकारी में जो इस मादरे तिब्बी का जो सबसे बड़ा जो कोई स्टूडेंट जो है किसी सबसे बड़े पोस्ट पे पहुंचा है तो वो सिर्फ नईम भाई हैं। हम लोग इसे नईम भाई कहते हैं। थैंक यू सर। Of the lecture is multi-component therapeutics in hepatic disorder, experience and experiment। पहला तो पार्ट इसका इंट्रोडक्शन का कि जाहिर है कि लीवर डिसऑर्डर प्रेजेंटली इज अ चैलेंजिंग डिजीज एंड वेरी कॉमन इन एडवांस countries as well as in my country। तो लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। पहली बात तो ये हम लोग जानते हैं, weighing 1 to 1.5 kg and representing 1.5 to 2.5% of the lean of the body mass। It is complex organ both in the anatomical structure and physiological function and chief site of the metabolic of diet and drug both। Approximately 20% of the blood flow is oxygenated with blood flow, blood from hepatic artery, and 80% is nutrient rich blood from the portal vein। Majority of cell in liver and hepatocyte which constitute 2/3 mass of liver and perform numerous vital functions in maintaining homeostatic and health। The basic function of liver and vascular metabolic, excretory, secretory, bile circulation, detoxification, erythropoiesis, blood coagulation and heat production। In India, near about 20,000 deaths occur annually due to liver disease। National Institute of Communicable Disease reported 1 lakh occurrence of viral hepatitis case every year in India। 1 lakh। Hepatitis B, especially hepatitis B, is very common। In US, 27,000 deaths due to chronic liver disease। 400 million population are carrier of hepatitis B। In affluent countries, the incidence of hepatic cirrhosis is correlated with consumption of alcohol। In developing countries, viral infection and malnutrition are the major cause of liver disease। In India, hepatitis A virus is responsible for 16% of viral hepatitis, whereas hepatitis B virus is 42%, and the rest are caused by C and E। यूनानी डिस्क्रिप्शन क्या है? इसलिए कि हम लीवर को ट्रीट करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कैसे ट्रीट करें। लीवर इज वन ऑफ द हमारे यहाँ खुद लीवर के तमाम डिजीज के क्लासिफिकेशन मौजूद है। अब आप इसमें जो हेपेटाइटिस, सिरोसिस, जॉन्डिस, हेपेटोमा, एब्सेसिस, ट्यूमर, हेपेटोबिलियरी डिजीज, यानी ये जो क्लासिफिकेशन है ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। वैस्कुलर डिजीज ये तीन क्लासिफिकेशन है। उसके पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैथोलॉजिकल फीचर आफ्टर न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर हेपेटोसिलोसिस। In different types of the subacute and chronic hepatitis, hepatocellular necrosis, cirrhosis and fibrosis
ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ये पूरा जो मैकेनिज्म है डिजीज कंडीशन की वो दिखा। The development of hepatic disorder, hepatitis or hepatitis-like condition is the result of involvement of multiple complex and interlinked mechanisms. And since liver is the chief site of the metabolism of all the devices, that is why the successful impact of the many liver diseases is still not available, and the allopathic system of medicine has been completely failed to offer something substantial in this time. ये मेरा why drug are essentially hepatic यूनानी drug क्यों है? इसमें क्या खास है जो आपको यूनानी दवा single drug contains multiple chemically active ingredients which may perform diverse type of pharmacological action through several mechanisms like anti-inflammatory, molecule, antioxidant, Proposed hypothesis क्या है कि keeping in view of the evolution diverged by interlinked mechanisms nearly in the all type of hepatitis, the first similar compounders that possess bonding active during the hepatitis or other liver enzymes. ये हमारा प्रपोज हाइपोथेसिस है कि यही दवा इस तरह से हमारे काम करती है। और वो एक्सपेरिमेंटल सीसीएल कोड जो लीवर को बिल्कुल खराब करती है, जिससे खराब करने के बाद हम उसके तो ये कुछ दवाएं हैं जिस पे हमने काम किया। चिरायता किसी ने दर्जा चिरायता सरसों का बदला, और इनमें मॉडल क्या थे? हमने जब हमने इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की और इसकी बायोकेमिकल स्टडी को हम ये एनिमल मॉडल पे हमारा काम है, और एनिमल मॉडल पे जो हमने काम किया उसमें ये पूरी तरह नज़र आता है कि ये एनिमल को प्रोटेक्ट ही नहीं करता बल्कि उसमें रीजनरेशन भी इसके सेल्स में कर रहा है। ये पे क्या इफेक्ट आता है? तो हमारे यहाँ जो इफेक्ट नज़र आता है माजून डबिकुल वर्क, क्योंकि बहुत ही वाइडली यूज होती है लीवर में, उस पर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो उस पर काम करने के बाद उसकी हिस्टोपैथोलॉजी भी की और उसकी बायोकेमिकल स्टडी भी की, तो दोनों जगह ये नज़र आता है कि इसका जो रिज़ल्ट है वो ये है कि वो यानी बायोकेमिकल भी जो CCl4 रिड्यूस ग्रुप है और जो इसकी हिस्टोपैथोलॉजी के बाद भी ये बात नज़र आती है कि वो लीवर को रीजनरेट करता, लीवर को प्रोटेक्ट ही नहीं करता बल्कि लीवर को क्योर भी करता है। इसी तरह पुरसेरेवन पे काम किया गया, उसका ये रिजल्ट मौजूद है। We have future investigated the antioxidant potential of some previously established hepatoprotective Unani drugs in order to validate the role of oxidative stress in hepatitis, to explore their mechanism of action and correlate the sui megastrata of liver with embolization induced oxidative stress, as embolization induced the oxidative stress mediated hepatic damage without any involvement of the extrinsic effect भी रखती है या नहीं रखती। तो ये बात भी नज़र मिलती है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मौजूद है। ये वो दवाएं हैं ज़ाफ़रान, जवारी शामला, जहर मोहरा, जवारी जंजबील। जब इन पे काम किया तो ये नज़र आया कि इनके अंदर पूरे तौर पर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी मौजूद है। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी फार्माकोलॉजी की पूरी की है, इसकी पूरी डिटेल्स मौजूद है। इसमें इम्यूनो इन एक्टिव पोटेंशियल ऑफ यूनानी ड्रग्स ऑन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, regeneration potential of Unani drugs in hepatomatized rat, protective and curative potential of Unani drugs in immunological and some other chemically paracetamol, thiocyanamide and D-glycosamium induce hepatic damage. अब नाउ कम इन क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो असल में हेपेटाइटिस बी पे मेरा काम है और जिसको मैंने
ख़ास तौर से किया है एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद क्लिनिकल स्टडी। हेपेटाइटिस बी अकाउंट 42% in India and responsible for majority of the fulfillment hepatitis, and many of them go to chronic carrier stage, resulting in chronic hepatic cirrhosis, bleeding, diathesis, and hepatocellular carcinoma. The disease has illness course ranging from 1 to 3 months. The patient recovers on their own from liver injury or become worse with complications, but usually after complete recovery, patient continue to complain of general debility from 2 months. So any therapeutic agent which could reduce the course of illness, prevent the development of complications, and enable the victim to resume their normal life sooner, could be considered an effective and safe drug. Next, क्लिनिकल वो दिखाता हूँ मैं। देखिए ये क्लिनिकल जब हमने स्टडी की तो ये हमने डायग्नोसिस क्राइटेरिया लिया और इस डायग्नोसिस क्राइटेरिया पे हमने पूरी क्लिनिकल स्टडी की। ये पेशेंट हैं जो हमने पेशेंट लिए, वो पेशेंट ये थे हमारे। इन पेशेंट को हमने एज वाइज इनको और सेक्स वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें हमने जो दवा दी वो उसमें मौजूद दबिजुलवर ये रिजल्ट है। सीरम बिलिरुबिन जो मैक्सिमम रैंक थी वो 14.57 थी, जो ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल एलजीपीटी जो 46 थी, 461 थी वो नॉर्मल। 7 अरक अक्संटीन अरक चिरायता माजून Na1 and माजून Na2. In our clinical experience, it was found that HBsAg remained positive in those cases where Na1 and Na2 were not induced in treatment regime for the patient of hepatitis B. जो दवा कोडेड ड्रग है वो जिनमें लगाई गई वो सारे के सारे निगेटिव हुए, लेकिन जिनमें कोडेड ड्रग नहीं लगाई गई वो निगेटिव नहीं। Therefore, as we discussed earlier, the use of such single or compound drugs that possess muhallil, mane mukassir, tiryaq, muaddil, muqawwi manat, mudir safra, muhazzil, dafa ta'fun, and regenerative potential would be effective in curing the hepatitis or other parenchymal disease, because liver disease has multifactorial causation as well as an interlinked diversified complex mechanism, and hence use of multi-component therapeutics would be effective rather than the use of one target, one drug paradigm. Next, ये in sight of the Majun Dabidulwar, the glaring classical example of the multi-targeted। ये मैंने जब मैं पढ़ाता भी था तब भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि माजून दबिजुलवर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो किस तरह लीवर पे काम करते हैं और उनके कौन कौन से अज्जा उनमें अपनी क्या क्या खसूसियत होती है। वो खसूसियत के साथ ये माजून दबिजुलवर की डिटेल है कि ये किस तरह लीवर पे अपना काम करते हैं। अब अगर आप माजून दबिजुलवर को देखें तो पूरा जो मुरक्कब है उसमें जो अफादियत मौजूद है उसमें कौन कौन सी दवा क्या क्या कर रही है वो मैंने ऊपर लिखा है। और जाहिर है कि जब वो सारे एक्शंस को मिलाएं तो उन सारे एक्शंस का जो मजमूई इफेक्ट होता है वो लीवर पे जो मैंने बताया कि वो मुहाफ़ज़त भी करती है, यानी वो प्रोटेक्टिव भी है, क्यूरेटिव भी है और रिजनरेटिव। कंक्लूजन, Unani medicine has great potential to cure the chronic and intractable disease due to holistic approach, and it is shown in our experimental and clinical experiences. There are therapeutically effective drugs for infective hepatitis and hepatitis B due to complexity of liver and involvement of the multiple mechanisms in hepatic disorder. Following group of drugs are recommended for the therapeutically used in liver disease, especially in infective hepatitis B. Muallil,
माने मुकस्सिर, तिर्याक, एंटीडोट, मुअद्दिल, अल्टरेटिव, मुकव्वी मनात, इम्यून मॉड्यूलेटर, मुदर्र तफरा, क्लोरेटिक, मुहद्दिल एंड दाफे। नेक्स्ट। मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू था। मेरे लिए ये एक मतलब मश्क जैसा इसलिए था इनोवेशन के साथ साथ कि सर की क्लास भी कुछ इससे ज़्यादा ही इनोवेटिव हुआ करती थी। जब सर कंपैरेटिव यूजी लेवल पे जब बातें हम लोग को इस तरह से जज्ब करवा देते थे अपनी क्लासों में, और ख़ास के लीवर के डिजीज़ें जिसमें डायबिटीज़ भी आ जाती है, इसमें सर की ऐसे तो मतलब आप लोग जानते हैं कि बहुत ही मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मतलब है सर का, जो ज़ख़ीम वर्क है सर इसका इस पर, और जो एक्सपर्टीज़ है वो अनकम्परेबल है कहीं से भी। और इस गर्मी में भी फिर भी काफ़ी वक्त निकाला आपने सर, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे सेशन को जो एक सेशन दो भी लेक्चर हुए हैं, इसको वाइस प्रेसिडेंट CCIM शेख ज़ुबैर साहब इसको प्रोसाइड कर रहे थे। तो मैं चाहूँगा कि सर इस पर एक अपना वो प्रेजेंटेशन नोट जी सर आप दोनों एक चीज़ है बस सर के प्रोसाइड ओवर करने से पहले मैं आप लोग के लिए नोट दूँ कि इसके बाद जो ये जो थीम है उस थीम पे एक ओपन डिस्कशन सेशन ठीक इसके बाद आएगा, जब सर प्रेजेंटेशन नोट दे देंगे इसके बाद ओपन डिस्कशन आएगा कि आयुष वेलनेस सेंटर जो सेंटर का प्रोग्राम है 4200 के आसपास जो सेंटर्स खुलने हैं ये अपकमिंग फाइनेंशियल फिस्कल ईयर्स में, उस पर आपके जो सजेशंस होंगे, क्योंकि फील्ड में जो काम करते हैं उनका एक अपना मैंडेट होता है, उनकी एक अपनी प्रैक्टिकल समझबूझ होती है। हमने एक रिपोर्ट भी तैयार करी है जो यहाँ से लेकर सेंटर को भी जाएगी, रिकमेंडेशन के साथ पढ़ेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले एक ओपन डिस्कशन होगा। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत ही फ्रूटफुल और पॉजिटिव आप लोग का इसमें बाय दोनों साइड से रिस्पॉन्स आएगा। पहले सर इसको की नोट कर दें इसके लिए दो प्रेजेंटेशन को, उसके बाद इंशाल्लाह ओपन डिस्कशन करेंगे। मैं आप लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त और हिम्मत को दाद दूंगा कि पोस्ट लंच सेशन के बाद लोग कभी बड़े सुकून से सुन रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि यूनानी के जो टॉपिक होते हैं काफ़ी ड्राई होते हैं और लोगों को उस ड्राई टॉपिक के अंदर किस तरह से इंटरेस्ट पैदा करना, अपनी तरफ मुतवज्जह करना, एक ऐसा साहब ने बड़े मकसूद अंदाज से पेश किया और नईम साहब ने पेश किया। एक चीज़ जो आपके लेक्चर में समझ में आई कि किस तरह से हम अपने स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे कि कल वो मार्केट में आने के बाद प्रैक्टिस कर सके। अक्सर ये देखने में आया कि हमारे बच्चे 4.5 साल तक कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके अलावा 1 साल इंटर्नशिप करते हैं, मगर उसके बाद भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता प्रैक्टिस करने का। अक्सर देखने में आता है कि वो कोई हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं या कोई सीनियर फिजिशियन ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो ये क्या बात है कि वो 4.5 साल पढ़ा, 1 साल इंटर्नशिप किया, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं था, या क्या बात है कि वो बच्चा जब 6 महीने 7 महीने या 1 साल किसी नर्सिंग होम में काम किया, उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू किया, उसके कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। ये जो चीज़ें हमारी हैं ये हमारे टीचरों को महसूस करता है कि किस तरह से बच्चों को कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए और वो प्रैक्टिस में सक्सेस रहने करते। दूसरी बात ये कि आज की तारीख के अंदर डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो चुका है, थायराइड बहुत कॉमन हो चुका था। आई हैव सीन द थायराइड पेशेंट, यंग पेशेंट ऑफ थायराइड्स, और डायबिटीज से बिकम द हब ऑफ इंडिया। 50% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो एक चीज़ अगर हमारे कॉलेजेस के अंदर एक क्लिनिक चालू की जाए जिससे सारी ओपीडी है, प्री डायबिटिक क्लिनिक एंड प्री थायराइड क्लिनिक, उससे यह होगा कि अगर हम अपने मरीज को 10 साल तक
डायबिटिक होने से रोकें, तो उससे जो फ़ायदा होगा, उसमें जो कॉम्प्लिकेशन होने वाला है 10 साल तक, उसको फाइनेंशियली जो लॉस होने वाला है, उसकी लाइफ टाइम जो बन जाए, बहुत बड़ी बात होगी। और ये हमारे हिकमत में है कि हम किस तरह से उसको उसकी लाइफ स्टाइल चेंज करें, डाइट चेंज करें, उसकी हर चीज़ चेंज करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं करके। ये हमारी हिकमत में है और हमें करना चाहिए। उसके अलावा थायराइड, आज वेरी कॉमन थायराइड इन फीमेल्स। क्या वजह है कि आज थायराइड बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है? कैसर साहब ने बहुत अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश की है। मैं कैसर साहब की ज़्यादा तारीफ तो नहीं कर सकता हूँ, लोग ये कहेंगे भाई बॉम्बे के हैं तो बॉम्बे की तारीफ ज़्यादा हो रही है। दूसरी बात जो प्रोफेसर नईम साहब की, आपने जो हेपेटाइटिस बी के ऊपर काफ़ी इवोल्यूशन किया और ड्रग की बात बताई, और आप मैं समझता हूँ आज की तारीख के अंदर इंडिया के अंदर हेपेटाइटिस का 30 बन चुके हैं करके। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पहली बार इनको सुन रहा, और इससे पहले लोगों से तारीफ सुनी कि आप हेपेटाइटिस के बारे में बहुत सारा वर्क कर रहे हैं और बहुत सारा रिसर्च वर्क हुआ करके। एक चीज़ और मैं आपसे ऐड करना चाहूँगा कि लोग अक्सर आते हैं हेपेटाइटिस बी की पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर के आते हैं। हेपेटाइटिस बी की पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर आते हैं, जब वो मेडिकल करते हैं बाहर जाने के लिए कि मुझे अब्रॉड जाना है, वो मेडिकल में फेल हो जाते हैं। देन दे कमर्स टू अस, हमने एलोपैथी इलाज कर लिया, हेपेटाइटिस बी स्टिल पॉजिटिव, कुछ भी करो जाता ही नहीं है। व्हाट वी कैन डू फॉर दिस पेशेंट टू मेक दिस हेपेटाइटिस बी अ सिली एंटीजन नेगेटिव, वी आर थिंकिंग ऑन टॉयसन। और मैं सोचता हूँ सर इसके बारे में बहुत अच्छा जवाब देंगे उसके लिए। और ये जो एक चीज़ जो आजकल बहुत कॉमन देखने में आई है कि लोग कुछ भी खाते हैं और कुछ भी पीते हैं, पीते का वर्ड आता है तो वहाँ पे आप समझिए क्या पीते होंगे, और लोग कहते हैं कि हमने B52 खा लिया सब ठीक हो जाएगा करके। ये जो थ्योरी चल रही है आज के बारे में, लोगों के अंदर डिवाइड बाइट चल रही है, इसको भी हमारे लोगों को हमारे फिजिक में कंट्रोल करना चाहिए कि भाई B52 है, बट उससे बेहतर फार्मूले हमारे पास यूनानी के अंदर है जो बेटर ट्रीट कर सकते हैं और बेटर क्योर कर सकते हैं। तो मैं दोनों स्पीकर को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उसके बाद ये जो ओपन सेशन होगा आपके सवाल आएंगे और हमारी तरफ भी कुछ सवाल जो होंगे उसका जवाब भी देंगे। उसके अलावा आपने कहा था कि एक पॉइंट और भी बताया था, CCI की तरफ से स्टेटस को रिव्यू किया गया तमाम सिलेबस को। अब तक मेरी टीम में हमने अब तक 4 वर्कशॉप की MD के, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक, स्किन, और अभी हाल ही में हमने एनाटॉमी और ENT के वर्कशॉप किया और फिर नए सिलेबस बनाए। हमारी कोशिश ये थी कि उस सिलेबस को बनाने के लिए जो लोग आए वो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं और कोई भी बना दूसरा कोई नहीं बना। इससे पहले मैं सुनते आया था कि लोग सभी लोग कोई भी आके बनाया करता था, इस तरह से ऐसा आप नहीं हो रहा है करके। और ये कोशिश है कि सिलेबस ऐसा हो जिसमें से हिकमत खत्म ना हो। एलोपैथी तो हो मगर हिकमत को उसको दबने जा पाए, और हिकमत वहाँ होना चाहिए। इसलिए ENT के सिलेबस जो हमने बनाया उससे पूरी कोशिश की कि ENT के अंदर हमारी यूनानी खत्म ना हो, हिकमत खत्म ना हो करके, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है आज की तारीख में बिकॉज ऑफ हिकमत है, और हमें डॉक्टर की से हिकमत में हमारी आइडेंटिटी नहीं है। और आइंदा भी हम जाकर तमाम सिलेबस रिव्यू कर रहे हैं। इस बात की कोशिश होगी कि उसके अंदर भी हमारी यूनानी खत्म नहीं हो करके। और ये जो सी बातें आई है, अभी हाल ही में हमने तहफ़्फ़ुज़ी और समाजी किट को क्लिनिकल बनाया, उसके बारे में बहुत से कंट्रोवर्सीज आई।